Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. Grade 3 Science, Unit number 4, How do we grow? Lecture number 1, Lesson number 2, How do some parts of our body change as we grow? Before we will start our lecture, student, please write down some important instructions. Student, bring your science book, open it and write day and date properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by your teacher on your book. And please follow these instructions. Brain. Student, open the book, unit number 4, page number 45. Let's read the lesson carefully. Before starting the brain, I have to discuss some important points about our body. So for this, you can open page number 44. How do some parts of our body change as we grow? Question number 1 on this page is draw the lines from the body parts to where they belong on the skeletal system. There is a skeletal system on this picture and 4 different organs, heart, stomach, brain and lungs are there. You have to put these organs on their proper place. Our brain is present in our under our skull. Okay? Skull is the protective covering that cover our brain. Ribs is the protecting covering of the bones that protect our lungs, heart and stomach. As a human beings, we have a pair of lungs. So these lungs are under these ribs and then our heart and muscle are on the left side of our body. हार्ट जो है वो ऊपर है एंड देन स्टमक जो है वो उससे नीचे है. ठीक है बेटा. अब देन वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. रीड एंड कंप्लीट द ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन विद द स्टेप्स टू कैच द बॉल. फर्स्टली बेटा, you have to think about your body, how wonderful body is created by the Allah. ठीक है. You can see, you can hear, you can run, you can think. All these will be done by the different parts of the body and all these parts coordinate with each other to do a work. For example, someone throws a ball to you. You see the ball, then you run after this and then you catch it. आप मतलब इसमें आप देखिएगा कि कौन कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं. सी मीन्स आई. ठीक है. रन योर लिम्स, योर लेग. ठीक है. एंड देन यू कैच इट. ठीक है. इसमें आप अपने हाथों को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सब जो है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट हो रही हैं. किसी एक मतलब कोई एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि हमारे सब बॉडी पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है. ठीक है. तो वो बेसिकली क्या है? ब्रेन. ठीक है. So now we will discuss brain in detail. It controls our physical and mental activities by sending and receiving the messages. Your brain sends the message to the other parts of your body and to tell them what to do. But a brain helps us to think and feel. It controls our physical and mental activities. Our 5 senses help us to send the information to the brain. Before this, मतलब आपको इसको जो है मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ. ठीक है. एग्जांपल, you hear a telephone ring and the sound travels to your brain and your brain may tell you to answer the phone. आप फ़ोन की बेल सुनते हो, आपके सेंस ऑर्गन्स जो है वो आपको बताते हैं कि आपने कोई आवाज़ सुनी है. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है कि वो साउंड जो है वो ट्रैवल होती है ब्रेन तक. ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करता है कि इसको जो है आप इस तरह आंसर करें, मतलब फ़ोन उठाएं और आप उस पर मतलब बात करें. ठीक है. अच्छा, अब बात है बेटा हमारी 5 सेंसेस की. ठीक है. जो हमारे 5 सेंसेस है ना, ये हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ठीक है. एंड देन द ब्रेन जो है उस पर अपना जो मैसेज है, ठीक है, या मतलब ऑर्डर जो है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन बॉडी ऑर्गन्स को डिलीवर करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो अपना फंक्शन प्ले करती हैं. ठीक है. इसके एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे स्कूल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है. ठीक है. तो आप टीचर को बताते हैं. ठीक है. टीचर जो है हम कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेटर जो है वो प्रिंसिपल से डिस्कस करती हैं. सिमिलरली प्रिंसिपल ने जो ऑर्डर देने होते हैं वो भी एक फ्लो के एक पाथ के थ्रू
आते हैं, ठीक है। इसी तरह हम ब्रेन हमारी बॉडी में एक मेन कंट्रोल सेंटर है, जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब आप जो है वो रात को सोते हैं, ठीक है। आपने कभी इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन की है कि मतलब मैं रात को सो रहा हूँ तो मेरा दिल धड़क रहा है, या मैं सांस ले रहा हूँ, या मतलब मेरे बाकी सिस्टम जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। मेरी किडनी, मेरा मतलब लंग्स, मेरे हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है। वो किस तरह हो रही होती हैं? वो हमारे ब्रेन जो है, जो हमारा मतलब हमारे यहाँ पर मतलब एक तरह से कंट्रोलिंग पार्ट जिसके पास है, ठीक है, जिसको अल्लाह ताला ने ये दी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे सारे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ठीक है। when the babies are born their brain are only ready to send and receive some messages to learn how to crawl, walk and talk. The brain need to develop more. आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ द टाइम देयर ब्रेन विल बी डेवलप, ठीक है। बेबीज़ जो होते हैं उनका ब्रेन इतने जल्दी डेवलप नहीं होता, ठीक है। उसके लिए कुछ एज कुछ टाइम चाहिए होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हर चीज़ जो है वो लर्न कर लेते हैं जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो रही होती है। नो बेटा, देयर आर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑन योर बुक एंड दीज आर इन 4 नंबर 1 and 2 3 4, टोटल 4 हैं ये। आपने इसमें जो भी ट्रू एंड फॉल्स आपको ऑप्शन लगती है आपने उस पर करना है, मतलब सर्कल कर देना है, ठीक है। योर ब्रेन ओनली send the messages to your body. Number 2, hearing is one of the 5 senses. Number 3, babies cannot crawl until their brain develop enough. Number 4, when they are born babies can talk. Write homework on this question and also write homework on question number 1 and question number 2. Student, question number 4 is also on your homework, ठीक है। What are your 5 senses, ठीक है। जब आपने इसमें अपने 5 सेंसेस के नेम जो है वो मेंशन करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि आपने इसको जो आपका क्वेश्चन मैं नोटबुक पे लिखने के लिए दूँगी, ठीक है। ये तो अभी सारा बुक वर्क है, ठीक है। तो वो आपने अपनी रफ नोटबुक पे करना है, फिर हम जब आपको उसका प्रॉपर सही आंसर बताएंगे, जो कि आपका एंड ऑफ द लेसन में हम आपसे इन सब के आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपने फिर बुक पर में जो होगा उसको रेज करके ठीक कर लेना, अगर उसमें कोई मतलब आंसर आपका ठीक नहीं है तो। और जो आपका रफ नोटबुक पे आपने काम किया होगा उसको अपने नीट नोटबुक के साथ मैच करना होगा, फिर आपने उसको नीट नोटबुक के ऊपर राइट डाउन नोट्स के साथ मैच करना होगा, फिर आपने उसको नीट जो आपकी क्लास वर्क नोटबुक है या होमवर्क नोटबुक जो भी हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस पे करना है वो आपने उस पर राइट डाउन करना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 46, stomach. Your stomach has changed the food so your body can use it. Muscles in your stomach mix the food. Liquid in your stomach help to break the food into tiny pieces. Stomach is actually a muscular organ, and it can digest the food with the help of the liquid which is present in it. Food we eat give us the energy. Food is just like a fuel, just मतलब जैसे एक कार होती है, ठीक है। कार needs the petrol to work properly. In the same way our body needs food as a fuel, and this food can be changed into energy by the digestive system, and the main part of the digestive system is the stomach, ठीक है। Then there are other organs that work in coordination with the stomach, but we have only discussed stomach here. बेटा स्टमक में जो मैंने आपको लिक्विड बताया, ठीक है, कि वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं फूड को इनटू द पीसेस। फर्स्टली अवर व्हेन वी ईट फूड, मतलब हम जब फूड लेते हैं तो हम अपने दांतों से क्या करते हैं, वी बाइट इट एंड देन चू इट, ठीक है, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल बॉल्स एंड पास थ्रू आवर नेक रीजन, मतलब जो आपको फील होता है कि मेरे गले में से खाना गुजर रहा है, ठीक है, एंड देन गोज इनटू द स्टमक। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ सब आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आपका फूड पाथ कैसे है, कि आप पहले खाना खाते हैं, उसको आप चबाते हैं, ठीक है, फिर वो आपके गले में से, मतलब बेसिकली तो वो फूड पाइप है, ठीक है, आपको ऐसे फील होता है कि वो मेरे गले से गुजरता हुआ जा रहा है, ठीक है। देन वो जाता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जिसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ओके, अच्छा जी, अब इसके साथ जो अदर पार्ट्स ऑफ जो हैं उसमें इंटेस्टाइन्स हैं,
स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, लेकिन इसका भी आपके बुक पे जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको जर्नली सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि वो फूड को आगे फर्दर और ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं और हम उससे एनर्जी लेते हैं। अब बात आ गई जी इन्फेंट्स की, ठीक है। इन्फेंट्स हैव द वेरी स्मॉल स्टमक, दे कैन नॉट ईट ऑल द ऑफ द फूड, they drink the milk until they are of 4 to 6 months old. They can only eat solid food when the liquid in their stomachs have developed and they when they start to grow teeth. जैसे उनके टीथ निकलते हैं उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 6 मंथ्स के बाद फूड लेना शुरू करते हैं, ठीक है। और बेटा इसमें अब क्वेश्चन नंबर जो है आपको 5 जो है वो मेंशन किया, ड्रा एन एरो टू शो हाउ द फूड मूव फ्रॉम द माउथ इनटू द स्टमक। दिस इज़ वेरी सिंपल पिक्चर, ठीक है। यू हैव टू शो इट बाय योर by the pencil and drawing the arrow, and this will be done on your book and this is your homework, so please write homework on question number 5. Now we will discuss about question number 6. Why cannot baby eat all the types of food? Circle the correct option, and the options are: number A, they do not have teeth; number B, milk makes them sick; number C, the liquid in the stomachs are not ready; number D, they cannot change the food into the energy. Okay, and you have just circle the right answer, and this will also be done on your book, and this is your homework. Please write homework on this. With a partner, count the number of the teeth you have. Discuss why the teeth are important. जी ये क्वेश्चन है जिसको आपने अपने रफ रजिस्टर पे करना है और आपने सोचना है कि व्हाई टीथ आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके स्टूडेंट, आप लोग जो है इस बुक वर्क को कर लें, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, देन यू विल डिस्कस विद अस, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। थैंक्स स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।